about 100 minutes. Yes, got it. Yes. So before starting this session, I would like to thank you very much, Vibnet and Suparna ma'am, for inviting us to conduct a session for students and post science into people. Most of the people the ICER, but I would like to show some pictures which will explain the what is ICER and what we do over here. So this is a building of the ICER Pune. It is located in the Pune city. So normally we say the ICER Pune. Of course, there are 7 ICERs. Among the 7 ICERs, ICER Pune and ICER Kolkata are the oldest ICERs. So this is a main building of the ICER Pune, and here we conduct a lot of outreach activity for the students and the teachers, and also for the general public. And there is a very nice quote at the entrance of the main building. And what is that? The ICER Pune, where tomorrow science begins today. And this quote is very, very appropriate for this our seminar and this session. Because tomorrow science, for betterment of the tomorrow's India or tomorrow science, basically we have to start today. And another picture is, so this is our Srimati Indrani Balan Science Activity Center, and this is the outreach center of the ICER Pune. And here we invite students and the teachers from the various schools and colleges and try to show them how science is beautiful if you learn through activities and various new techniques of the education. So this is our lab. Normally people say, what is about this? So normal we say, so this is a lab of the physics, chemistry, biology, mathematics, computer, and everything is there basically. This is a tinkering lab. And if you see the carefully, the most of the material readily available in your home. So students and the teachers can design this kind of the activity by using the very, very simple material. For example, just plastic bottles lying everywhere nowadays. So we have designed here more than 50 activities just with help of the bottle. Like a discarded old ball pen refills. We have designed some activity using the ball pen refills, cardboards, newspapers, even old photocopy papers. So we use that kind of the material to design the activity and explain the basic concept of the physics, chemistry, biology, and of course the mathematics. And recently, we're also starting the new laboratory called a tinkering laboratory. This is the kind of the separate. This is also part of the tinkering laboratory, but we have now we got the new project and we are doing special kind of the dedicated laboratory for the tinkering. Here the student can come and they use various kind of the tools like the drilling machine, cutting machine, and they make a kind of the prototype model. So this is the one of the picture. So here we invite the students from the school. So this is the school visit. And one more picture. If you see the actually faces of the children, they really enjoyed actually like a cricket match. So our science demonstration like a very, very happening kind of the place, and they enjoyed sometimes 3 hours, 4 hours. They actually say, oh, we don't want to go for the toilet. We don't want to go for the food, but we continue our session. So you can see the happy faces of the children, how they enjoying our sessions over here. We also conduct a lot of workshop for the teacher. So this is a dedicated workshop for the teacher. Last, I think more than 5 years, every actually year, more than 20,000 people visit physically over here. And among that, about the 20% are the teachers. Now, this is about the Science Activity Center, ICER Pune, and outreach department of the ICER Pune. And I would like to show you some of the new activity we designed over here. चलो अभी लेकिन this session should be interactive, so I will ask some question मतलब interactive question, basically not kind of the very what you are thinking the science based or method based question. तो हम interaction dialogue होगा हमारे बीच में कि आप बातें करो, आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपके साथ पूछूंगा. So basically, so just recently we have this ये हमने बना दिया. So let me उसमें कुछ background में मैं रखता हूँ. तो आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा मुझे हाँ चलो आई थिंक दिस इज बेटर. और ये मैं क्या करूंगा राइट नाउ आई एम यूजिंग द अभी देखिए ये क्या शेप है. जस्ट मैं एक उंगली रखूंगा. यू हैव टू टेल मी द व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप. ये क्या है? व्हाट इज दिस वन? कोई बोलो. दिस इज अ ट्रायंगल. व्हाट इज अनदर वन? व्हाट इज अनदर वन? Triangle. दिस वन? Quadrilateral. And this one? Rhombus. Diamond. Also, no, this is not a triangle. Rhombus. It's a diamond. This one? Quadrilateral. Again, some quadrilateral. Okay, this one is a
Quadrilateral. Parallelogram. And this one? Rectangle. Triangle. अभी Triangle. मुझे ये बता दो, अभी मैं जस्ट लेट मी यूज द अदर कैमरा, तो फ्रंट कैमरा मैं अभी इस्तेमाल करूंगा, और दूसरा एक हमारा टॉप जो है वो भी मैं अभी कोशिश करता हूँ यहाँ। राइट नाउ वी आर यूजिंग द टॉप का। हाँ, अभी देखिए जस्ट आई एम पुटिंग दिस शेप्स ओवर हियर। अभी ये देखिए सभी, अभी देखिए मैंने कोशिश किया यहाँ रखने का। अभी इफ आई आस्क यू, ये सभी का जो पेरीमीटर है, यू नो द पेरीमीटर मतलब क्या है कि इफ यू ऐड ऑल द साइड्स ऑफ सपोज दिस क्वाड्रिलैटरल, इसका जो एडिशन होगा दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, और उसके अंदर जो है ना दैट इज द एरिया। तो मुझे जस्ट आई एम आस्किंग यू द पेरीमीटर, यदि आप ध्यान से देखोगे ये सभी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ऑल द क्वाड्रिलैटरल्स एंड द ट्रायंगल जो है, उसका पेरीमीटर कुछ आपको अलग लग रहा है या सेम लग रहा है? Different. डिफरेंट तो लग रहा है ना। और बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आप कॉमनली मतलब हम बोलते हैं ना, एक नजरिया से अभी पता चलेगा कि दिस साइड इज अ स्मॉलर देन दिस वन, ये तो बड़ी लग रही है हमें। दिस वन इज ऑल्सो स्मॉलर देन दिस वन, दिस वन इज स्मॉलर देन दिस वन, दिस वन इज ऑल्सो स्मॉलर देन दिस वन। तो मतलब आपको पता चलेगा कि ये सभी बड़े बड़े साइड्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हैं। तो इफ यू सी द पेरीमीटर इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ये तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली दिस ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग द डिफरेंट पेरीमीटर। लेकिन आपको एरिया के बारे में सोचेंगे तो क्या लगता है कि सभी का एरिया आपको अलग लग रहा है या एक लग रहा है? एरिया मतलब ये जो येलो कलर का जो लग रहा है ना आपको, ये जो, तो क्या लग रहा है आपको, एरिया सेम है या डिफरेंट हो सकता है? Different. डिफरेंट हो सकता है, मतलब यू आर थिंकिंग द पेरीमीटर भी डिफरेंट होगा और एरिया भी डिफरेंट होगा। Yes. चलो, विजुअली तो हमें यही लगता है, लेकिन हमेशा साइंस और मैथमेटिक्स में वी नीड द प्रूफ, क्योंकि ये सेम है तो कैसे सेम है? इफ यू हैव द डिफरेंट देन यू हैव टू टेल कि मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन कि डिफरेंट कैसा है। तो मैंने जैसे पेरीमीटर को अपने बोल दे कि विजुअली तो ये लग रहा है कि ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, लेकिन पेरीमीटर तो अलग है, लेकिन एरिया वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, एरिया अलग है या सेम है। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट आई एम शोइंग यू द टू ट्रायंगल्स। अभी देखिए मैं बाजू में यहाँ दो ऐसे भी थोड़े निकाल के मैं आपको बताता हूँ कि दीज आर द टू ट्रायंगल्स है। देखिए, देख रहे हैं ना आप ट्रायंगल? अभी देखिए मैं थोड़ा हाथ में पकड़ता हूँ, शायद आपको, हाँ देखिए ये दो ट्रायंगल्स है बिल्कुल। और व्हाट आई एम डूइंग ना, आई एम पुटिंग दिस शेप अगेन ओवर देयर, और इसका देखिए अभी मैं ये ट्रायंगल जो है ना कोशिश करूंगा, दो ट्रायंगल यहां मैं रखने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां तो नहीं बैठ रहा, थोड़ा सा ऊपर का लाइट हम बंद कर सकते हैं, और देखिए अभी यहां भी नहीं बैठ रहा। सो बेसिकली यू हैव टू एडजस्ट द ट्रायंगल सच ए वे दैट ये दोनों में बैठना चाहिए। अभी देखिए इसमें जो हो रहा है ना, अभी देखिए, अभी थोड़ा क्लियर पिक्चर, हमने लाइट थोड़ा ऑन किया तो बैठ गई यहाँ। मतलब यू कैन एक्सप्लेन द एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल जो है वो ये अपना क्वाड्रिलैटरल का है, क्योंकि वो बिल्कुल फिट बैठ गए दोनों में। देखिए अंदर फिट बैठ गए ना। सपोज इफ आई टेकन द सेम टू ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है, सेम है ना, आई एम ट्राइंग टू फिट सम इन सम अदर शेप। अभी देखिए मैं कोशिश करूंगा, लेट मी ट्राई ओवर हियर, और इसमें देखता हूं बैठ गए। मतलब श्योरली आप बोल सकते हैं कि अभी जो पहला जो क्वाड्रिलैटरल था और ये जो हमारा अभी रेक्टेंगल है उसका एरिया सेम होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों फिट हो गए ना। लेट मी टेक द अनदर शेप। अभी मैं ट्रायंगल की कोशिश करता हूं, एक ट्रायंगल लेता हूं, चलो मैं इसका कोशिश करूंगा। देखिए यहां बैठ गया, एंड देन व्हाट आई एम शोइंग यू, अभी देखिए यहां भी बैठ गए। तो आप बता दो कौन सा भी शेप मुझे, तो आई एम ट्राइंग टू फिट दीज टू ट्रायंगल्स विद इन दैट शेप। अभी देखिए ये कुछ थोड़ा सा ऑड लग रहा है हमें, एक थोड़ा सा ऑड लग रहा है। अभी देखिए यहां हो गया और ये यहां हो गया, देखिए फिट हो गया। तो बेसिकली यू कैन एक्चुअली ऑक्युपाई ऑल द, जो कुछ एरिया यहां लग रहा है ना येलो कलर का, विथ इन टू जो है हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उससे। तो बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, हमें देखते समय ऐसा लग रहा है कि दीज शेप्स मस्ट बी हैविंग द डिफरेंट एरिया। अपना पेरीमीटर तो अलग ही है, लेकिन एरिया आल्सो आपने मुझे बता दिया कि वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इफ यू एक्चुअली फिट द टू ट्रायंगल्स इन ऑल द शेप्स देन यू विल गेट द आइडिया, ये जो शेप्स है उसका सभी का एरिया सेम ही है।
ऑल द क्वाड्रिलेटरल जो ट्रायंगल यहाँ जो है बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स उसका एरिया सभी का एक ही है, लेकिन ऑफकोर्स दे आर हैविंग द डिफरेंट perimeter. So basically we try to explain the area and the perimeter concept using that kinds of the hands-on activities. और ये देखिए कार्डबोर्ड से भी हम काट सकते हैं, मतलब जो भी इफ यू हैव एनी थिकर पेपर से भी आप देख सकते हैं कि बेसिकली विथ हेल्प ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लाइक दिस। और कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, देखिए ये मेरे वो जो ट्रायंगल थे अभी एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर सकते हैं और उसका बिल्कुल एरिया एंगल्स भी इक्वली है, साइड्स भी इक्वल है। देखिए तो these are the two congruent triangles and you can actually make a different kinds of the shape just using the two congruent triangle। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो बेसिकली यदि बच्चों के हाथ में इस टाइप का एक्टिविटी जाता है तो उनको पता चलता है कि अरे लगता है डिफरेंट पर लगता है कुछ और लेकिन होता है कुछ और। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि एरिया उसका सेम है लेकिन पेरीमीटर अलग है। चलो अभी मैं दूसरा दिखाता हूं आपको। मोस्ट ऑफ द स्कूल अभी ये इस टाइप के मैग्नेट्स स्कूल में होते हैं। अभी देखिए ये जो है बार मैग्नेट, ये जो है बार मैग्नेट लेकिन मटेरियल इज डिफरेंट फेराइट मैग्नेट। और इसके ऊपर एक लिखा हुआ होता है, एक तो व्हाइट डॉट नहीं तो ऐसा एन होता है। तो बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी बताते हैं। यू मैग्नेट आपने देखा, रिंग मैग्नेट देखा, डिस्क मैग्नेट देखा। Now I'm showing you the square magnet. So this one is actually very strong neodymium magnet. ये magnetic compass है। मतलब most of the school having only 3-4 types of the magnet, but I'm showing you there are hundreds types of the magnet. The Pune having the one shop, they having the 1000 different kinds of the magnet. A triangular था, heart shape था, star shape आपने देखा, arrow shape है। These are the kind of the chattering magnet बोलते हैं उसे, और rattling magnet भी बोलते हैं उसे। और this is a special, ये जो magnet है ना, this is a rubber magnet. It's very flexible, and most of the therapy people use this type of the magnets. We don't know this therapy is good or bad, but basically they are using the magnets. So these are the bead magnets. और स्कूल को इतना बच्चों को इतना ही पता चलता है कि बार मैग्नेट उनको मालूम होता है, हॉर्शो मैग्नेट मालूम होता है, मैग्नेटिक कंपास मालूम होता है, लेकिन इतने मैग्नेट्स होते हैं कि ये मैं आपको थोड़ी झलकी दिखाता था कि ये कितने टाइप्स के मैग्नेट है। अभी मैं ये सभी जो मैग्नेट है तो जस्ट आई एम शोइंग यू द ऑल मैग्नेट। अभी यहाँ जो मैं कैमरा में अभी टॉप कैमरा देखो, ये देखिए जो सभी जो मैग्नेट मैंने आपको दिखा दिया ना, सो दीज आर द मैग्नेट्स। तो बेसिकली ये रबर मैग्नेट था और बाकी के देखिए यू मैग्नेट भी है। बेसिकली यू हैव द स्टार मैग्नेट, you have the square magnet, so all the different kinds of the magnet. So basically just I'm showing you the different kinds of the magnets. Okay, now magnet का एक बहुत interesting property है। So वो जो property है just I'm trying to explain on this paper. Suppose if you have this paper and just I'm putting few ring magnets over there। देखिए ये कितने मैग्नेट्स है अभी अब बोल सकते हैं? 3 magnets। 3 मैग्नेट्स है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए कैन यू सी हियर, तीनों मैग्नेट दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। देखिए मतलब उसके पोल कौन से हो सकते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग। तो देखिए और एक बार मैं आपको बताता हूं। सपोज देखिए अट्रैक्शन हो रहा है एंड इफ आई चेंज, मतलब देखिए उसको मैं फ्लिप करता हूं। देखिए फ्लिप किया तो अभी क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो रिपल्शन किस में होता है और अट्रैक्शन किस में होता है? यू नो द पोलैरिटी, मैग्नेट हैव द 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन इसका जो खासियत होता है, हाँ दीज जो टाइप ऑफ द मैग्नेट होते हैं, कौन से भी मैग्नेट होने दो उसको पोल्स तो होते हैं, लेकिन जब अट्रैक्शन होगा तो यू कैन से श्योरली देयर मस्ट बी द अपोजिट पोल्स नॉर्थ एंड द साउथ। और आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज इफ आई यूज द स्ट्रॉ और स्ट्रॉ के अंदर मैं ये मैग्नेट डालता हूं और देयर अट्रैक्टिंग मींस देयर मस्ट बी द अपोजिट पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। और इसकी खासियत ऐसी होती है पोल्स ऑन द सर्फेसेस, दिस टाइप ऑफ द मैग्नेट जो होते हैं ना, इसका जो है ना पोल सरफेस पे होते हैं। तो यू कैन सी हियर बेसिकली अट्रैक्शन, क्योंकि वो एक दूसरे को चिपक गए। देखिए लेकिन इफ आई मेक देम उल्टा, एग्जैक्टली इन्वर्टेड पोजीशन में उल्टा करके डालूंगा, then you'll get the idea they are repelling to each other. Repelling means they must be having the same poles facing to each other, north or south. The same pole repel to each other and the opposite poles attract. So basically this I'm showing you the
properties of the magnet attraction and the repulsion depend upon the polarity. देखिए, you can make very very nice spring. ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ना, ultimately we are using the same concept to teach the geometrical patterns by using the magnets. अभी देखिए, ये जो, फिर मैं अपना ओवरहेड कैमरे पे जाता हूं. अभी देखिए, ये जो है, तो इसका जो खासियत है, ये रिपल्शन हो गया. एक्चुअली यू कैन फ्लिप इट सच ए वे दैट सभी मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए. अभी देखिए, ये अट्रैक्ट हो रहे. अभी मैं क्या करूंगा, एक रिपेल इसमें रिपेल हो जाएगा. अभी इसमें देखते हैं, रिपेल हो गया, और इसमें देखते हैं, रिपेल. तो बेसिकली दे आर रिपेलिंग टू ईच अदर. बस देखिए ना, अभी इसका जो यूज हम करने वाले हैं टू क्रिएट द वेरियस ज्योमेट्रिकल पैटर्न. तो मैं अभी पानी लेता हूं. मेरे सामने यहाँ एक पानी का बोल है, और आपको एक कैमरे के नीचे में रखता हूं. अभी थोड़ा सा ऊपर का लाइट मैं बंद करूंगा, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा. ओनली दिस वन. यस, कैन यू सी द बोल ऑफ द वाटर? अभी पानी देख रहे हैं क्या? Yes, sir. हाँ, अभी देखिए, द सेम मैग्नेट्स हमने क्या किया है, ये ढक्कन में रखे हैं. देखिए, ढक्कन में, लेकिन थोड़ा ग्लू लगा के. तो ढक्कन में रखने के बाद क्या होगा, देखिए, सपोज इफ आई ड्रॉप दिस मैग्नेट इन द वाटर, वो तो अभी डूबेगा. देखिए, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेट इज एक्चुअली मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर. हेवी है, डूब गए बेसिकली ये. तो उसे मुझे लाइटर कैसा बनाना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेट सच ए वे दैट इट शुड बी द लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर. तो ये होने के बाद आपको पता चलेगा. देखिए, ये ढक्कन में हमने डाल दिया. तो ढक्कन एंड द एयर और हियर, मतलब अंदर की हवा, मैग्नेट और ये ढक्कन का एवरेज डेंसिटी अभी कितना है, वो पानी से कम है. तो इसलिए वो फ्लोट हो रहा है. सो दिस इज ना फ्लोटिंग मैग्नेट. तो हाउ टू रिड्यूस द एवरेज डेंसिटी? तो बेसिकली उसका हमने वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया. और अभी पोलैरिटी जो है ये मैग्नेट का, अभी दूसरा मैग्नेट अभी मुझे चेक करना है. इफ आई प्लेस ओवर हियर, कैन यू सी द मैग्नेटिक रिपल्शन नाउ? अभी देखिए, कैन यू सी द रिपल्शन? Yes. बेसिकली यू कैन लर्न द मैग्नेटिक रिपल्शन दिस फन वे. बेसिकली वो एक दूसरे के तरफ क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज दे आर रिपेलिंग टू ईच अदर. Now if I place suppose third magnet, अभी देखिए क्या पैटर्न बन रहा है. Suppose if you join all these central point, अभी सेंटर ज्वाइन किए तो क्या शेप है ये? What is the name of this shape? It looks like a triangle. Now if I place suppose one more magnet, अभी क्या शेप बन गए? Square. Square. लगभग if you have the suppose if you have the strength equal, सभी मैग्नेट की स्ट्रेंथ इक्वल है, then you'll get the exact square. But right now I don't know कि किसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका कम है, and that decides कि ये सेपरेशन कितना होगा. The separation between the magnets also decide उसका स्ट्रेंथ कितना है. Okay. अभी if I place one more magnet, fifth magnet, तो क्या बन जाएगा? You got initially you got the two magnets. हाँ, तो like a line. बाद में you got the triangle. Right now here you are looking the square. अभी पांचवा डालने के बाद क्या होगा? If I place fifth magnet, पेंटागन बनेगा. सपोज Pentagon. मैंने सेंटर में रखा, तो देखिए पेंटागन बनता है क्या? इज इट पेंटागन? हाँ, तो क्या हो रहा है ना, ये मैग्नेट और ये मिडल में जो है ना, उसको रिपल्शन का धक्का दे रहे हैं. दे आर रिपेलिंग टू ईच अदर. मतलब मिडल मैग्नेट को सभी साइड से रिपल्शन का धक्का, तो कहा नहीं जाएगा. अभी थोड़ा सा मैं उसको पुश करता हूं, तो देन यू आर करेक्ट, यू विल गेट द पेंटागन. And suppose if you have the strength same Sabiki, then you will get the exact regular pentagon. Abhi, if I place sixth magnet, then what is this say? The pentagon having the center. और इसको थोड़ा सा पुश किया, then of course देखिए, you will get the hexagon. Hexagon. If you join the center of all the magnets. Exactly hexagon. And if I place suppose seventh magnet over there, then you can see the hexagon having the central point. And if I push it little bit at the side, then this is your, what is the name of this geometrical shape? आप बोल सकते हैं इसका नाम क्या है? 7-sided polygon. It's a
heptagon basically. Yes, heptagon. So you can make a very geometrical shapes by using the strength of the magnet. Strength मतलब repulsion जो होता है ना, वो strength. Attraction किया तो गड़बड़ है. तो हमने क्या किया? We have fixed the magnet such a way that all the faces मतलब magnet के चाहे north हो या चाहे south हो, एक ही side पे आना चाहिए. So this way you can learn very interesting activity, the geometry and their patterns by using the magnetic repulsion. आपको मजा आया ये? आप जरा बोलिए. Yes, sir. ये शाम और हम बहुत यहाँ मुझे नाम दिखाई पड़ रहे हैं, तो यू कैन मतलब आपको जो अच्छा लगा तो बिल्कुल अच्छा बोल देना, समझ में नहीं आया तो बिल्कुल हम डबल भी बता सकते हैं. नाउ टुडे वी आर शोइंग यू वैरायटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब उसमें थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए, तो आपको मजा आ जाएगा कि हम यहाँ क्या क्या टाइप के एक्टिविटी डिजाइन करते हैं. वी ऑलवेज आपको इन आवर वेबसाइट देयर इज अ कैटेगरी, फिजिक्स के अलग है, केमिस्ट्री के अलग है, बायोलॉजी के अलग है, मैथमेटिक्स के अलग है, और फिजिक्स में भी प्रेशर के अलग हो गए, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म अलग हो गए, मैथमेटिक्स में भी अलग अलग कैटेगरी हमने बना दी है. लेकिन टुडे विद इन द 45 मिनट्स आई एम गिविंग ग्लिम्स so what kind of the activity we do over here. At the end of this session my colleague Ankit will explain you कि वेबसाइट पे हमने कहाँ रखा है और उसे कैसा देखना है. तो ये हो गया. अभी चलो थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक लेता हूँ. अभी मेरे हाथ में ये जो जैसे मैंने बता दिया ना, ये अलग टाइप का मैग्नेट होता है. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. देखिए, और उसका स्ट्रॉन्ग कितना मतलब यदि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, कंपेयर किया तो ये दिखते समय बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. सो दीज आर द नियोडियम मैग्नेट्स नाउडेज अवेलेबल इन द मार्केट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स. या मैंने दो लिए हैं, यू कैन आल्सो यूज वन, लेकिन दो है तो मैंने दो लिए हैं. और दिस वन इज बेसिकली सिरिंज. कौन सा भी, यू कैन यूज एनी पाइप. The syringe, what we did this ये कलरफुल लग रहा है आपको, ये जो कुछ यहाँ वाइंड किया है, ये क्या लग रहा है आपको कलरफुल चीज? देखिए Copper wire. दिखाता हूँ. हाँ, yes, you are correct. So basically here we are using the insulated copper wire, and this, if you see the turns, 1000 tons of the insulated copper wire, and the ends of that copper wire we have joined to this small bulb LED, light emitting diode. And just now nothing is there, just I am dropping two magnets. दो मैग्नेट यहाँ डाल दे. देखिए, अभी डालने के बाद अभी देखिए कुछ मूवमेंट नहीं है, हलचल नहीं है, तो अभी यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा. लेकिन as soon as if I change the position of the magnet very fast, आगे पीछे करूंगा मैग्नेट, लेकिन से अभी देखिए मैं यहाँ ऐसा पकड़ूंगा, कैन यू सी दैट वो लाइट जल रहा है, देख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली दिस इज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर. प्रोबेबली दिस इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इन द वर्ल्ड. व्हाट यू नीड, और सिंपलेस्ट मतलब बनाने के लिए भी बहुत सिंपल और एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल. तो अभी देखिए मैग्नेट भी है, कॉपर कॉइल भी है, नो इलेक्ट्रिसिटी. अभी देखिए यहाँ मैं एक साथ आपको दिखाता हूँ. यदि मैं अंदर मैग्नेट रखता हूँ तो नो इलेक्ट्रिसिटी. तो ये मैग्नेट होने के बाद और कॉपर कॉइल होने के बाद आपको रिलेटिव मोशन चाहिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट का ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कॉपर कॉइल के लिए चेंज हो रहा है, कम ज्यादा, एंड दैट इज कॉल्ड द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. And if you change the magnetic field in the conductor, you get the electricity. So this is basically Faraday's law. Here, student learn the concept of the Faraday's law by making their own generator. और बाद में उनको पता चलता है जो कुछ पावर जनरेशन हमारे पास, मतलब जो कुछ पावर इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है ना, तो उसके पीछे ये तो जनरेटर कहाँ होगा, लेकिन जनरेटर काम कैसा करता है तो उनको उसका आइडिया आ जाता. तभी और एक मेरे पास वो जो मॉडल है वो अलग है. देखिए इधर जल्दी आपको दिखाता हूँ. अभी यहाँ देखिए अंदर मैग्नेट्स है, यहाँ देखिए देयर आर मैग्नेट्स ओवर हियर. देखिए मैग्नेट्स अंदर है. ये कॉपर कॉइल तो आप देख रहे हैं. ऑन द एंड्स ऑफ दिस कॉपर कॉइल वी हैव जॉइंड टू दिस स्मॉल एलईडी. यहाँ हमने एलईडी फिट किया है. थोड़ा सा मैं सामने वाला बल्ब 1 मिनट के लिए बंद करता हूँ तो आपको अंधेरे में अच्छा दिखाई पड़ेगा. अभी देखिए, अभी शायद आपको थोड़ा टिमटिमाता दिखा होगा, लेकिन कैन यू सी द इलेक्ट्रिसिटी ना? बल्ब जल रहा है, आप देख रहे हैं ना अभी? Yes, sir. और जिसे मैं इसे उल्टा भी करता हूँ. देखिए आगे वन डायरेक्शन एक क्लॉकवाइज चल रहा है, बाद में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है. क्लॉकवाइज भी चलने दो, एंटी क्लॉकवाइज. तो बेसिकली हियर
यू आर लुकिंग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अब ये जो चक्का में घुमा रहा हूं, इन हाइड्रो पावर स्टेशन नॉर्मली क्या करते हैं ना, इसको बोलते हैं टरबाइन। और ये टरबाइन क्यों घूमता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी गिरता है। तो बेसिकली पानी से बिजली ऐसी बनती है। कैसे बनती है, तो वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कॉपर वायर, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब आप मैग्नेट को घुमा रहे हैं। तो ऐसा मैग्नेट घुमाने के बाद इन द कंडक्टर यू विल गेट द इलेक्ट्रिसिटी, और ये चक्का पानी से घूमेगा। बस ये आपको बताना था कि पानी व्हाट इज द रोल ऑफ द वाटर, just rotate the turbine. So this is a very, very interesting activity. Basically, you can make your home by using the readily available material. So I showed you the picture of our lab. ये हमारे लैब में ऐसा होता है, ओल्ड सीडीज है, रबर बैंड्स है, लकड़ी है, एलईडीज है, कॉपर कॉइल तो होती है। तो बेसिकली यू कैन असेंबल द जनरेटर बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ द मटेरियल। ये आपको बताना था। अब ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, ये हो गया हाइड्रो पावर स्टेशन। बाद में हम लाइट लगा के आपको बताएंगे कि यहाँ भी अंदर मैग्नेट है। देखिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और देखिए ये जो है ना, ये हमने एक बॉटल का पंखा बना दिया, बॉटल का पंखा बना दिया। अभी ये जो है, जब मैं इसे घुमाऊंगा, देखिए अभी आप ये यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूं, तो यहाँ ब्लो करने, अभी थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसे। ये हवा से चलता है बेसिकली, मतलब अभी यहाँ जब हम बाहर रखेंगे हवा में, तो एक्चुअली यू आर स्पिनिंग दिस वन। मतलब ये अभी मैं हाथ से घुमा रहा हूं, लेकिन नेचुरली हवा उसे घुमाती है। एंड बेसिकली दिस पार्ट इज अटैच्ड टू द मैग्नेट व्हिच इज इनसाइड, दिस इज द कॉपर कॉइल, एंड एंड्स ऑफ दैट कॉपर कॉइल जॉइन टू दिस एलईडी। दिस इज नथिंग बट द विंड मिल जनरेटर। अभी मैं उसे ब्लो करूंगा, थोड़ा सा खड़ा होकर मैं आपको बताता हूँ। यदि इफ आई ब्लो दिस वे, देखिए so basically you will get the power using the this wind. तो wind से basically ये घुमाने का काम होता है, लेकिन ultimately this part is more important to generate the electricity. तो wind mill generator कैसा होता है, ये हम उनको बताते हैं। और वो जनरेट द पावर डिफरेंट वे। हाइड्रो पावर स्टेशन होता है, विंड पावर स्टेशन होता है, कोल पावर स्टेशन होता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, यू नीड टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और बाद में आपको थोड़ा सा उसका और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी बता दो, ये सभी ने इसके साथ खेला है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टॉय? ये क्या है? फिजिट स्पिनर। फिजिट स्पिनर। बस बस, फिजिट स्पिनर बहुत पॉपुलर था लगभग 3 साल पहले। तो हमने क्या किया, वी हैव मेड अबाउट हाफ डजन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मॉडल यूजिंग द फिजिट स्पिनर। अभी देखिए इसको मैग्नेट लगा दिया, इसको मैग्नेट लगा दिया, और इसको भी मैग्नेट। ये जो आर्म्स है वी हैव फिट द मैग्नेट्स ओवर हियर। ओके, और देखिए अभी यहाँ एक कॉपर कॉइल है, और कॉपर कॉइल और मैग्नेट में थोड़ा सा गैप है, वो गैप मिनिमम होना चाहिए। देखिए ये गैप मिनिमम होना चाहिए ना। इफ आई चेंज, मतलब अभी इसके ऊपर मैं घुमाऊंगा, इफ आई चेंज द, अभी देखिए अभी अच्छा है, ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी देखिए जितना अंधेरे में आप कितना अच्छा देख रहे हैं। अभी देखिए ब्यूटीफुल। तो फिजिट स्पिनर का हम बेसिकली यू कैन यूज द फिजिट स्पिनर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये चल रहा है बेसिकली। ओके, और एक टॉर्च जैसा भी, देखिए अभी थोड़ा सा मैं यहां दिखाता हूं आपको, एक टॉर्च जैसा भी काम करेगा। कैन यू सी हियर? सपोज इफ यू यूज द व्हाइट एलईडी, ये टॉर्च का भी काम करेगा। ओके, of course you'll get the not very good quality light, लेकिन at least आप देख सकते हैं कि at least जो छोटी सी चीज नीचे गिर जाते हैं अंधेरे में, तो you can see that much. अभी another thing is, suppose if you want to make a bigger generator, bigger मतलब क्या, उसका कैपेसिटी ज्यादा आपको पावर चाहिए। तो for that अभी देखिए मैं थोड़ा सा ओवरहेड लेके आपको बताता हूं। मैं ये थोड़ा सा हटाता हूं और आपको बताता हूं कि ये हमने बनाया कैसा। अभी ये देखो, ये जो है ये मैग्नेट्स है बेसिकली। इसे और थोड़ा बाजू में लेता हूं। ये हमारे मैग्नेट्स हैं, ये फिजिट स्पिनर ही है बेसिकली, और यहाँ हमने मैग्नेट फिक्स किए। और मैग्नेट फिक्स करने के लिए यू कैन यूज एनी, लाइक बॉटल कैप भी हो सकता है। आप बोलोगे येलो कलर का क्या है, कुछ भी जुगाड़ कर दो बेसिकली टू फिक्स द मैग्नेट्स।
ये कॉपर कॉइल्स है, देखिए ये कॉपर कॉइल्स है, सभी साइड से कॉपर कॉइल लगा दिया हमने। और नीचे कुछ देर से नो इन हिडन बैटरी, आपको लगे क्या इसके पीछे कुछ बैटरी का, नो हिडन बैटरी। नाउ इफ यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी कितने लाइट यहाँ जल रहे हैं बता दो काउंट करके। All the four basically means to increase the amount of the electricity या power, you need more number of turns of the copper coil, more number of the magnets and also stronger magnets and also the speed. If you rotate slowly, देखिए बिल्कुल टिमटिमा रहे हैं, लेकिन if I rotate very very fast तो ज्यादा जोर से जल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो बन जाती है ना, वो किसके ऊपर, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉपर कॉइल, और ये कितना जोर से चल रहा है। मतलब जितना पानी जोर से गिरेगा बिजली ज्यादा बनेगी, जितना विंड ज्यादा है यू विल गेट द मोर इलेक्ट्रिसिटी। और कोल पावर स्टेशन में जितना अपन कोयला जलाओगे और उतना स्टीम बनेगी, और उतना स्टीम हम चक्की के ऊपर छोड़ेंगे, टरबाइन के ऊपर छोड़ेंगे, एंड दैट विल रोटेट द बेसिकली टरबाइन वेरी वेरी फास्ट। तो ये जो चीजें हैं जब हम करते हैं हद से, तो ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। अभी आपको तो ये अभी एक इंस्ट्रूमेंट दिखा के मैं बाद में मेरे साथियों को बुलाऊंगा। अब ये चीज क्या है बता दो। चरखा। ये चरखा किसने बनाया? गांधी जी। हाँ, सभी बोलते हैं गांधी जी ने चरखा बना दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बहुत पुराना है। कितना पुराना है? शायद 300 से ज्यादा, नॉट 300, 3000 ईयर से भी ज्यादा उसके रेफरेंसेस मिल जाते हैं। 3000 ईयर से ज्यादा पुराना है। उसे स्पिनिंग व्हील बोलते थे। गांधी जी ने इसका इस्तेमाल किया। गांधी जी ऑल्सो इन्वेंटेड वन चरखा, लेकिन वो ऐसा था, हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। लेकिन दिस इज वेरी वेरी ओल्ड, स्पिनिंग व्हील उसे बोलते हैं। अभी देखिए इसे एक यहाँ बड़ा चक्का और एक छोटा सा चक्का है, यहाँ देखिए छोटा सा, ये छोटा सा है, ओके, बड़ा और छोटा, टू इंक्रीज द गियर रेशियो। जैसे हमारा बाइसिकल पे होता है ना, आगे का गियर बड़ा होता है, छोटा पीछे का छोटा होता है। तो यहाँ एक रोटेशन होने के बाद यहाँ एक रोटेशन होने के बाद यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, डिपेंड अपॉन क्या साइज है। तो ये गियर रेशियो बढ़ाने के लिए ये छोटा चाहिए। और ये मतलब गियर रेशियो का मतलब क्या है? एक चक्कर में यहाँ एक चक्कर लगाएगा तो ये कितना लगाएगा? ज्यादा लगाएगा, दैट इंक्रीज द गियर रेशियो। अभी बस हमने क्या किया, वही चरखे को हमने वी हैव फिक्स द यहाँ कॉपर कॉइल और मैग्नेट, एंड यू कैन मेक अ चरखा जनरेटर। अभी देखिए मैं ऐसा पकड़ता हूँ आपको इजीली देखने के लिए। कैन यू सी नाउ हियर? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है ना, ये मतलब ये चीज जो ऐसी है ना, इसे आप मतलब चरखे से आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। बट हियर वी हैव मेड द जनरेटर यूजिंग द चरखा एंड वी गिव द नेम चरखा जनरेटर। अभी थोड़े लाइट के बारे में अब मेरे साथी को मैं बुलाता हूँ, अंकिश को, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएगा। लेकिन उससे पहले 2 या 3 मैं सिंपल चीजें आपको बताता हूँ, वेरी वेरी सिंपल। अभी देखिए एक स्ट्रॉ का पीस है। अभी हमने क्या किया, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये स्ट्रॉ को हमने ऐसा बेंड किया सेंटर पे, और यहाँ एक कट लगा दिया और यहाँ एक कट लगा दिया, एंड इफ यू ओपन इट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस होल, दिस शेप, मतलब डायमंड शेप का होल बन गया। देखिए यहाँ बाद में यहाँ टेप लगा दिया, यहाँ टेप लगा दिया, और इसका एक टॉप का कॉर्नर काट दो तो यहाँ देयर विल बी द होल। अभी देखिए यहाँ एक होल है, ओके, और यहाँ भी देयर इज अनदर होल। लेकिन ये होल और ये होल बेसिकली दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट, एंड दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। एक साइड के करके देखो, आपको पता चलेगा क्या होगा एट द एंड। लेकिन ये पता चलेगा कि 1 और 2 जो होल्स हैं डायमेट्रिकली अपोजिट है। दूसरा एक हमने एक स्ट्रॉ लिया है, एक स्ट्रॉ लिया है, और इसे देखिए आधा स्ट्रॉ है। यहां देखिए ऐसा पिंच करके दबा के वी हैव मेड काइंड ऑफ द वी नॉच। देखिए यहाँ वी नॉच है, ये वी नॉच। तो बेसिकली वहां एक होल हमें बनाना था, ये होल हो गया, देखिए यहाँ बिल्कुल होल है, ओके। तो ये जो होल है, अब ये होल वाला हिस्सा इसके अंदर जाएगा। सपोज इफ आई ब्लो लाइक दिस, हवा तो स्ट्रेट जाएगी ऐसी। लेकिन अभी ये मैं क्लोज करूंगा और यहां ब्लो करके ऐसा किया, यहां होल्ड किया, तो एयर एक्चुअली 90 डिग्री में टर्न होगी। देखिए मतलब यहां तक ऐसे जाएगी, बाद में 90 डिग्री में टर्न होगी, और वो जो हवा है इसके अंदर जाएगी। एंड देन इफ आई ब्लो फ्रॉम हियर, देखिए हवा यहां से ये पाइप में, बाद में यहां जाएगी, एंड इट विल कम आउट फ्रॉम हियर
or here, diametrically opposite, and that will happen. मतलब ये जो है हवा की वजह से होने वाला है। अब ये Yes, sir. देखिए बेसिकली ये यदि हवा यहाँ जाएगी यहाँ निकलेगी तो उसे धक्का अपोजिट साइड में मिल रहा है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ यू कैन लर्न by making this toy. Newton's law in action by using this toy. अभी इसे उल्टा करूंगा। देखिए अभी मैं ये हाथ निकालता हूं, हवा स्ट्रेट जा रही है, इसके अंदर नहीं जा रही, तो बस यहां उंगली चाहिए आपको टू स्टॉप द एयर फ्रॉम दैट वे एंड इट इज गोइंग नाउ इन द फैटल स्ट्रॉ। ओके, अभी सपोज ये आपने लंबा किया तो क्या होगा? ये लंबा होने के बाद देखिए, ये लंबा होने के बाद वही मैं स्ट्रॉ लेता हूं। देखिए ये आपको बड़ा मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या है बाद में करने को, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द होल एट द एंड, यहां होल किया तो क्या होगा, यहां होल किया तो क्या होगा, वेरी क्लोज टू द सेंट्रल पॉइंट तो क्या होगा। तो आप करके देखो, आपको पता चलेगा जितना होल एंड में होगा उतना घुमाने के लिए आपको अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसा। और एक लास्ट में एक्टिविटी दिखा के मैं थोड़ा सा बाजू में जाता हूं, देन माय कलीग विल कम एंड शो यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी अबाउट द लाइट्स। अभी देखिए एक सीधर से आपको क्या क्या हो सकता है। अभी देखिए ये स्ट्रॉ जो है ना, मैं यहाँ काटता हूँ। देखिए ये काटता हूँ ऐसा और यहाँ ऐसा काटता हूँ। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ द बेबी क्रोकोडाइल, यहाँ माउथ बन गए। देखिए ऐसा आप देख सकते हैं। ओके, ये ऐसा बन गया। और ये काटने के बाद इसका एक छोटा और इसका भी मैं एक क्या करता हूं, यहां काट के ये लंबा पीस आपको दिखाता हूं। तो बेसिकली दीज टू स्ट्रॉज हैविंग द डिफरेंट लेंथ, लेकिन वही स्ट्रॉ है, उस आई हैव मेड टू पीसेस। यहां फ्लैट करो और बाद में आपको यहां फ्लैट करना है, ये दबाना है। फ्लैट मतलब ये दबाना है, नजदीक लाना है बिल्कुल, और बाद में यहां ब्लो करो। So you can make the noise. लेकिन ये साउंड जो बन रहा है उसके पीछे क्या राज है, क्यों साउंड बन रहा है? समथिंग हैपनिंग ओवर हियर, लेकिन ये पार्ट मेरे मुंह में है, यू कैंट सी। लेकिन अभी मैं ऐसा करता हूं, ये बाहर रखता हूं और उसे खींचता हूं, और यहां आप देखिए क्या हो रहा है। You can see the basically vibrations over here, and vibrations is the base of the sound. ये मैं आपको बताना चाहता था। और दोनों में फर्क क्यों है, ये छोटा और ये लंबा। Very very low pitch, and if I use the smaller one, high pitch, low pitch, high pitch। और हम बताते हैं मजे से बच्चों को, ये हमारे घर में मम्मी का पिच है वेरी वेरी हाई, और ये हमारे बाबा का पिच है वेरी वेरी लो। फादर एंड मदर पिच यू कैन कोरिलेट, वेरी हाई वेरी लो। और ये उसमें और मजा कर सकते हैं, मेक वन होल ओवर हियर, and what you have to do, you have to make the one more hole over here, then you can make a kind of the बांसुरी। यहाँ होल, और ये तो नेचुरल है। अभी so you can hear the different kinds of the pitches. It's like a bansuri, means basically by opening and closing the hole I am changing the length of the vibrating air column in the straw. ये ओपन किया तो इतना छोटा स्ट्रॉ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ओपन आई एम यूजिंग द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रॉ। तो बेसिकली लेंथ एक्चुअली डिसाइड द पिच ऑफ द स्ट्रॉ, मतलब पिच मतलब टाइप ऑफ द साउंड जो हम बोलते हैं। और उसमें और एक लास्ट में दिखा के बाद में मैं बाजू में चलता हूं। अभी देखिए दिस एक्टिविटी यू नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ काटेंगे और ये देखिए आप ऐसा तो बन गया। और व्हाइल ब्लोइंग आई विल मेक दिस स्ट्रॉ मोर शॉर्टर एंड शॉर्टर, आई विल चेंज द लेंथ, लेकिन ब्लो करते समय करना है। तो यू विल फाइंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पिचेस।
Basically, different kinds of the pitches you can make by cutting the straw. और एक मजे की चीज लास्ट में दिखाता हूँ. Baby sound. So basically, I'm changing the length of the vibrating air column using my two hands. Now I'm requesting Ankesh, please come over here and he will show you more interesting activities. आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बच्चों? Very nice, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Very nice. Very nice, sir. Oh, so I hope you have enjoyed this activity and I'm audible? Yes? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Audible. So during this presentation, अगर किसी को कुछ queries है, doubts है, तो we'll take 5 minutes to answer your queries also. और जैसे भी अशोक सर ने आपको बहुत interesting activities दिखाई, also we have documented these activities in a form of a sequential photos, what we called. So वो मैं एक walk through भी करेंगे, कहाँ पे ये सब resources store है और कैसे आप download कर सकते हैं. And also for the teachers, we have very interesting lesson plans on this hands-on activities, which is exactly mapped with the school curriculum also. So उसके पहले कुछ activities light से जैसे अभी सर ने कहा वो भी दिखाते हैं. And also we have documented some of the activities in the form of videos. So to get a better clear understanding of that, I'll quickly show you one of the activity that we have here called as a balloon bench. So एक simple सा जो concept रहता है, basically it's from physics, but from 9th standard onwards ये जो concept है pressure and बहुत बार बच्चे pressure और force ये जो हम scientific vocabulary जिसे हम कहते हैं इसे अलग-अलग तरीके से use करते हैं. So with this activity, I want you to get an understand about what is exactly pressure, and pressure is basically force per unit area. And if we understand this formula correctly, and if we try to change one of the parameter, let us say we have numerator and denominator. Maths में भी what we call as an numerator denominator के बहुत सारे concepts रहते हैं जिसमें हम whole numbers भी पढ़ते हैं. We have proper fractions, improper fractions. But basically अगर denominator को change करके अगर उसकी वैल्यू कम की जाए या बढ़ाई जाए तो उससे हम कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं वो देखते हैं. सो आई होप दिस वीडियो इज विजिबल टू एवरीवन. ओके, सो आप देख सकते हैं वीडियो में ये जो स्टूडेंट है ये बलून को बहुत जोर से प्रेस कर रही है. एंड आई क्विकली टेक अ सर्वे फ्रॉम यू ऑल गाइस कि एक सिंपल सा जो बलून है दिस अ रेगुलर बर्थडे में हम जो लोग करते हैं ये कितना वेट ले सकता है, ये कितना वजन ले सकता है until it get burst. So we can have an option in terms of kgs. कोई बोल सकता है 5 किलो, कोई बोल सकता है 6 किलो. बहुत बार टीचर से हम पूछते हैं वो बोलते हैं कि up to 10 kg तक के जा सकता है. So can anybody just quickly unmute and कोई एक नंबर गेस कर सकते हैं कि ये बलून कितना वजन ले सकता है before it get burst? Okay, fine. So ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. So यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए एक वेइंग स्केल रखा है एंड विल एग्जैक्टली डू द सेम एक्टिविटी बट इन अ क्वांटिटेटिव मोड, जहां पे हमें ये भी देखने मिलेगा कि ये बलून एग्जैक्टली कितना वजन ले सकता है. सो 15 तक के गया है, 20, 25 तक के गया है. ओके, एंड नाउ जैसे हमने देखा कि एक सिंपल सा बलून 25 किलो तक के जाता है और एग्जैक्टली हमने वही किया है जो फॉर्मूला कहता है. तो फॉर्मूला कहता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज प्रेशर. नाउ आपने देखा होगा कि हल्की सी सुई भी अगर इसे लग जाए, अ वेरी शार्प नाइफ और वी कैन से नीडल कैन बर्स्ट दिस बलून बिकॉज द टिप ऑफ द नीडल हैव अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया. बट व्हाट इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया? सो what we are going to do this in this typical exercise is we are going to increase the surface area. So instead of taking small area जितना एक सुई की नोक पे रहता है उसका exactly उल्टा करना है. अभी हम surface area बढ़ा देंगे इसका. So आप देख सकते हैं कि कुछ हमने soft foam rubber रखा है और ये दो foam rubber के बीच में हमने बलून को सैंडविच कर दिया है. Now for one balloon we have 25
kg and now here we have 4 balloons. So हम क्या कर सकते हैं, 4 into 25 is 100 kg of margin we have, और हम इससे अच्छा सा एक बलून बेंच बना सकते हैं. सो एक सादा सा बलून जो हमें लगता है कि ये जल्दी फूट जाएगा, बट इफ वी मैनिपुलेट द सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट, हम एग्जैक्टली उसे एक बेंच की तरह यूज कर सकते हैं. सो वही इस एक्टिविटी में हमने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है. तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये जो स्टूडेंट है ये इस पे खड़े हो गए, और ये एग्जैक्टली एक्टिविटी आप रिपीट भी कर सकते हैं आप अपने साइड पे. इफ यू हैव अ सॉफ्ट क्लॉथ या फोम रबर भी लेके आप इस तरह से एक्टिविटीज कर सकते हैं. तो इस तरह की एक्टिविटीज हम जब यहाँ पे फिजिकल वर्कशॉप्स होते हैं तो हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि ये बलून बेंच पे वो बैठ के देखें कि किस तरह से वो साइंस को जब वो अच्छी तरीके से समझते हैं, या जब वो फॉर्मूलेस को अच्छे तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को समझ लेते हैं. So not only for the force pressure, but also all the concepts that they have in the physics, chemistry, maths, biology, they can do a wonderful things with that. Okay. So और आगे चलते हैं, and I hope this was clear. If anybody has any question, we can take that. Hello? I'm audible? Hello? Are you with me? Okay. Yes, sir. Yes. Yes. You are audible, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Another, we have a very interesting concept with one with candle. Candle आसानी से घर पे मिल जाती है. So before starting with this, we have here 2 candles, bottles, some bottle caps, and matchsticks. You should be careful while doing this experiment. It's a small experiment, but still you should take care. And not what we are going to do is, सभी को ये experiment पता है, but we have modified this experiment. ये इसमें ज़्यादा discussion की जरूरत नहीं है, but you can see that what we are exactly going to do is, उसको इन्वर्टेड कर दिया है, और बहुत बार बच्चे बोलते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कैंडल बुझ जाएगी. सो दिस इज अ वेरी टिपिकल एक्सपेरिमेंट, अ टेक्स्ट बुक एक्सपेरिमेंट, बट इसे किस तरीके से हम स्केल अप कर सकते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी रेगुलर एक्सपेरिमेंट, एंड इवेंचुअली द कैंडल विल गेट ऑफ. सो ये धीरे धीरे बुझ गई है, एंड ऑफ कोर्स द रीजन इज कि वहां पे ऑक्सीजन कम हो गया है. But now what we have to do is we have to repeat the same experiment, but अभी थोड़ा नीचे गैप रहेगा, and the question will be the same. You can guess your answers, and I'll pause this video for a minute. और अभी सेम वही करना है, but अभी भी जो कैंडल के नीचे कुछ जगह रहेगी because we have placed the bottle caps. Now we ask the students क्या इस बार भी कैंडल बुझेगी, क्योंकि अभी तो नीचे गैप है. When there was an answer कि because of lack of oxygen वो कैंडल बुझ गई थी, बट नाउ अब नीचे भी जगह है हमारे पास कैंडल के नीचे जहां पे हमने बॉटल कैप्स रखी है. नाउ द सिनेरियो विल बी सेम और डिफरेंट. सो दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी आस्क यूजुअली टू द स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी कैन सी द आंसर्स. बहुत बार बच्चों को लगता है कि नहीं ये अभी ये जलते ही रहेगी, बट स्टिल वो बुझ गई है. Now we'll repeat the same experiment in a parallel way so that we have a clear idea कि exactly हो क्या रहा है. And also this time what we'll do a very good observation, what we call as an inquiry based learning with students. Now we'll also note the time, or we can actually see कौन सी candle पहले बुझ रही है, so that we get a very clear picture कि what is exactly happening और कितना फर्क है दोनों में. So you can see कि जहां पे थोड़ा सा गैप था, फॉर एग्जांपल जो बॉटल कैप्स रखे हैं वहां पे थोड़ा देर कैंडल थी, बट स्टिल दिस एक्सपेरिमेंट targets the misconceptions that we usually have while reading the textbooks rather than doing the experiments. So यहाँ पे भले ही नीचे गैप थी, बट स्टिल ये जो दोनों कैंडल है वो सेम ही तरीके से बुझ गई है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर. सो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करने से जो टेक्स्ट बुक्स में कुछ चीजें रह जाती है, बेसिकली वो आगे चल के फिर मिसकंसेप्शंस के फॉर्म में आते हैं. उस टाइप के क्वेश्चंस या मिसकंसेप्शंस हम इस सिंपल एक्टिविटी से हम करके देख सकते हैं. सो यूजुअली वी परफॉर्म्स such type of experiments with students, and also we have documented these activities in a form of a sequential photos that in a minute I'll share with you. But also I have a very interesting activity with lights, so let's see that what we call as a colorful shadow. So for that I have some setup, so I'll quickly check with that. I hope this is
visible? 1 minute. Okay. Fine. So basically, for such type of experiments, we require a dark place. So I have switched off the light, and here I want to discuss with you a very interesting concept about the light. सभी ने लाइट ये जो कॉन्सेप्ट है ये 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, and most often we say that sun is the ultimate source of light. Yes, we agree with that. Sun is the ultimate source of light. Now, everybody have seen the shadow. Okay. Many of time we ask the students कि shadow का color क्या होता है? Can anybody just unmute themselves and answer this question? Shadow का क्या color होता है? Black. Black. और most often we say that the absence of light, जहाँ पे light नहीं है वहाँ shadow form होती है, basically dark color or the gray color. But what if I change the source? For example, if we say that sun is the ultimate source of light, और जो light आ रही है वो unpolarized light है, that is a mixture of all the colors, what we call as, and जो हम prism के experiments करते हैं बहुत बार उस type के. Now here I have a source जो मैंने change कर दिया है, and set this light. I'll request her to switch off this light for a minute. But okay, so now I have three colors here. You can see ये basically primary colors कहते हैं में से, red, we have green, and we have here blue. So we have here RGB colors. So basically हमारे phones में भी transistors जो होते हैं वो basically RGB ये light हमें देते हैं, which are also called as primary colors. So for this experiment, this will be source, a very colorful source. This will be my screen. जो wall है वो screen रहेगी, and my finger will act as an object. So we have here source, screen, and object. And what if I change the source? You can see that the very first question is this a shadow? जो wall पे, जो screen पे इस object की जो image बन रही है with respect to this source, which is a colorful source, rather than sun, which is a mixture of all colors. हमने उसमें से 3 color extract कर लिए हैं, basically RGB जो हम primary colors कहते हैं. And now we have this interesting image on the screen of my finger. So you can see instead of having a dark shadow जो हम regularly देखते हैं धूप में, we have here interesting pattern or a image which is a colorful image. And now the question arises, is this a shadow? The very first question. And the second question will be, is this a colorful shadow? क्या हम इसे colorful shadow कह सकते हैं? So can anybody want to contribute to this answer? It's a very interesting thing. So you can see that. I hope it's visible. Yes, it is visible. Yes. And now the question was, is this a shadow? So कोई student unmute करके answer कर सकता है? Okay, fine. So yes, this is a shadow, and we can say that yes, this is a colorful shadow. So basically यहाँ पे हमारे पास जो 3 colors है, उसी से ये shadow बनी है because of the mixing of colors, which is called as an additive mixing. But the main question is, यहाँ पे मेरे हाथ में green color है, blue color है, and red color है. But wall पे इनमें से तीनों में से कोई भी color नहीं है. Colors So, are different. Colors are different. Though the source of RGB, source में तो green है, but screen पे green नहीं है. So वो color कहाँ गए? So that's a very important question that I want to answer. So now what we'll do? So basically हमने ये बहुत बार हमारे टेक्स्ट बुक्स में देखा है, जो ड्राइंग की बुक होती है उसमें वेन डायग्राम्स रहते हैं. So now I have a circle cut out here, and now you can easily see there is an intersection of colors. So you can now answer that yellow कहाँ से बना है? It is due to the red and green. When you mix the 2 colors of red and green, you get a yellow. And now when you mix the green and blue, you get a cyan color. That's a cyan, C-Y-A-N. And we also have a very interesting concept in our textbook that if we mix all the colors, it gives to the white color. So let's see. You can see that central part में आपको white color दिखेगा. So इस तरह से ये आया, और सभी को अगर mix कर देंगे तो बीच में जो intersection बन रहा है वो white color का बनता है.
सो बेसिकली जो वॉल पे जो कलर्स बने हैं दोज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कलर्स. सो बहुत बार आपने कलर प्रिंटर्स देखे होंगे, वहां CMYK ऐसा लिखा रहता है. C for cyan, M for magenta, Y for yellow and K for black. And in the same way you can form a very interesting pattern of this. This is a disk and you can see that disk से भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बना सकते हैं. So in this way you can have a very interesting concept जो फिर से कलर थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है. And usually your mobiles are working on this concepts. क्योंकि मोबाइल में ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सिर्फ RGB ही होते हैं. They have only that color RGB. I'll request to click on that. Thank you, sir. So basically मोबाइल फोन्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं. कभी अगर मोबाइल पे हल्का सा पानी का ड्रॉप गिरे या बहुत बार बारिश में अगर स्क्रीन पे हल्का सा पानी का ड्रॉपलेट आता है, also water droplet act as a lens. It acts as a concave lens. And उसमें से आपको हल्का सा रेड, ब्लू, ग्रीन ऐसे आपको हल्के हल्के कलर्स दिखेंगे विच आर बेसिकली ट्रांजिस्टर. जो आप लेंस में से देख रहे हैं, जो पानी की बूंद है वो लेंस के जैसा काम कर रही है, नॉट कॉन्केव बट कॉन्वेक्स लेंस. सो इस तरीके से जो मोबाइल फोन्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के जो कलर्स मिलते हैं वो बेसिकली डिजिटल कलर्स हैं. बिकॉज द स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चन टू अस कि सर अगर सभी कलर्स मिक्स कर दिए, बेसिकली वी हैव अ वाटर कलर एंड इफ यू मिक्स ऑल द कलर्स you never get a white. You take this as a challenge for you as a STEM activity. You mix all the colors, red, blue, green, whatever, but you will never get a white color. आप dark towards dark color के तरफ जाएंगे. Why it is happening? Because those colors are acting as a pigments, and these colors are called as digital colors because of additive mixing. So there is a very interesting concept called as an additive and subtractive mixing. If you have a time, you can just check this concept. This is a very interesting concept which is basically used in all the color theories, basically called as color gadgets, color printers, mobile screen. आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं. बहुत बार कलर अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होते. कोई ब्लू कलर का है तो वो कुछ और डिफरेंट कलर का दिखता है. सो इस टाइप के जो एरर्स आते हैं ये बेसिकली कलर्स और डिजिटल के जो फ्रीक्वेंसीज रहती है वो मैच नहीं करती, इसी के वजह से वो क्रिएट होते हैं. सो हम स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि कलर्स, light, these are all related concepts which are aligned with our textbooks. So बहुत बार हम frequency, amplitude, there are different properties of light, ये हम textbook में as a definition पढ़ते हैं. But there is also a very interesting way to look to these concepts with the method of hands-on activity that we propose in this session, hands-on session. So what I'll do, like this activity, we have many activities, more than 150 activities we have documented on our website. So I'll quickly walk through with all the activities that we have documented. I'll share my screen. I hope this is visible. And here is the IISER Pune homepage. So what I'll do, I'll go step by step manner. So what you can do, you can write here IISER Pune. So this is IISER Pune homepage. And here you can see engage with IISER Pune. आप यहाँ click कर सकते हैं engage with IISER Pune, and then you can go for the outreach and training section. And here with the outreach and training section, here we have a tab called as an Science Activity Center, and this is a landing page for our center where we have activities, educational resources, team and gallery. So you can go to the educational resources section. So there are different types of resources, basically in a form of an audio video resource, in a form of a YouTube. We also have interesting digital repositories of all the activities. I'll quickly go with this. And here, just to align with the textbooks, we have divided all the activities. Basically, those activities are in a form of an interdisciplinary approach. But just to get aligned with the textbooks, we have physics, chemistry, biology, mathematics. Of course, in the interest of time, we have not shown you for some of the biology and the chemistry activities, but we have documented. So I'll go with the physics activity जो आज हमने आपके साथ share की थी. So you can see this interesting fidget spinner activity. So here we have step by step a very important slide called as a material slide, where you have a glimpse of all the material in a very specific form with also gauge, कितने gauge का wire है, कौन सा magnets है, what the magnet called as, bottle caps है, wooden sticks है. So इस type की जो detail information है यहाँ पे step by step sequential manners. Of course, there is a very important relation of number of turns. कितने number का turns रहना चाहिए.
एंड दिस ऑल्सो हैव अ आइडिया कि हमारे जो सीलिंग फैंस रहते हैं, बहुत बार हम सीलिंग फैंस देखते हैं, सभी को पता होगा, जनरेटर्स रहते हैं. सो ये हैवी क्यों रहते हैं? सीलिंग फैन हैवी क्यों है, जनरेटर हैवी क्यों है? बिकॉज दे हैव सो मेनी टर्न्स, मे बी इन थाउजेंड्स. उनके जो मैग्नेट्स है वो भी हैवी है. सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच गिव्स एन आइडिया कि सीलिंग फैन इतना हैवी क्यों है, जनरेटर्स इतने हैवी क्यों होते हैं. बिकॉज मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, more the voltage you can produce. So these are the step-by-step sequential photos where you get an idea, a very detailed idea how to design this activity. And also if you have any good suggestions for this, those are most welcome. You can write back to us. We'll surely incorporate that. So like this, we have nearly, I'll just scroll down all the activities with respect to the topic, air expansion and contraction. Here we have some activities with electricity and magnetism. Also, we have many activities on force and motion. And subject-wise activity, if I go with that, you can see very important law called as Boyle's law. We have with the syringe and balloon experiment here. Also, very interesting concept called as an elephant toothpaste. इसे किस तरह से बनाया जाता है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. And of course, many of the concept with separation or the material separation or the chromatography, acid and base reactions, such type of activities can be easily demonstrated without going to the lab. In the classroom itself, we can design or we can make these activities. So these are the interesting stuffs that we regularly do here. And also this is our channel, YouTube channel. You can subscribe to this channel for a regular notification. Also, recently we have streamed this video on a Teachers Day event with Arvind Gupta ji. So उन्होंने बहुत ही interesting talk दिया था. You can also have a look on this. And here is a playlist. I'll quickly share this playlist via email also with the teachers. And the interesting playlist where here we have our called as a video lesson plans. Most of the time we have seen the lesson plans in a text form, but this playlist will give us an idea for the video lesson plans. So for basically for the teachers and students, this playlist is open in a public domain where you can see different types of topics documented exactly aligned with the school syllabus, whether it's a CBSE board or the state board, but it gets aligned with all your topics, how to map this activity into your curriculum. So then this activity is no more only for the project-based learning, not only for the science exhibitions, but also now it takes a place into the classroom. So this was the idea to document such type of activities, and in one of the projects we have these activities modified into the video lesson plans. So the theme was for the teacher by the teacher. So under this theme, ये हमने बनाया. So this is from all from our side, and if anybody has a question, so the floor is open for that. And yes. Sorry.